دیکھو نا جی کہ یہ جو مولوی ہیں انہوں نے جو ہے نا بربادی پھیلا دی ہے، ہمیں بدنام کر دیا ہے۔ حالانکہ جو ان کا یعنی کال پہ لینے کا بندہ طریقہ کار جو ہے نا وہ یہ ہے کہ پہلے بندے کو بیک گراؤنڈ پہ لیتے ہیں، اس کے ساتھ واٹس ایپ پہ رابطہ ہوتا ہے، رابطہ کرنے کے بعد اس کا سوال پوچھنے کے بعد بندہ پورا ویریفائی ہونے کے بعد پھر اس کو سکرین پہ لیا جاتا ہے۔ اور بھائی جب آپ نے اس سوال کا جواب دینا ہی نہیں تھا تو اس بندے کو یہ سوال کرنے کی اجازت آپ نے کیوں دی؟ تو اس سے ثابت ہوتا ہے صرف اور صرف لوگوں کو شبہ میں رکھنے کے لیے اس نے یہ کام کیا، اسلام کو یعنی کہ اسلام کو متنازع بنانے کے لیے اس نے یہ کام کیا۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سید صاحب، میرے ایک چھوٹا سا سوال ہے، منو بسو دسرا جواب جی دے دیں۔ یہ سید صاحب بات یہ ہے جی، آپ جو ہے دیکھیں کہ ہم نے ایک سوال لگایا اوپر کہ مرزا انجینئر گستاخ کیوں نہیں ہے، تو آپ اس کو کیا مانتے ہیں؟ اپنا مجدد نہیں، مانتے ہیں مرزا یا جیل اس میں کو گستاخ گستاخ کیوں مانتے نہیں ہیں؟ ہے؟ جی دیکھو، بالکل۔ مرزا جیل میں گستاخ اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ قرآن و حدیث کے مطابق گل کردا۔ اگر ثابت کرو، اگر وہ قرآن سر و حدیث کے مطابق گل نہیں صحیح پھر جی اسی گستاخ کہہ سکنے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں، جدوں اچھا مجھے بتائیں، ایک مجھے ایک بتائیں ایک مینوں ایک گل جی دا جواب دے دیو، صرف سر ایک منٹ سر کائنات صبر چلانے کر والا لو کون؟ حضرت ایک منٹ حضرت بات سنو، بات سن لو کائنات چلانے بھائی، والا بات سن کون؟ لیں پلیز، رزق بات کون سن لیں، دینا رہا؟ وہ اللہ کی ذات ہے، بات سن لیں میری بھائی، بات تو سن لیں۔ بس پھر یہ تو او خلاص یار گالتے سن لیا کرو یار، کی ہو گیا وے میرے نہ بھائی، میری بات نہ سن جی۔ لیں پلیز۔ موضوع تھا ہمارا جو میں نے آپ سے سوال بھی کیا کہ مرزا انجینئر گستاخ کیوں نہیں ہے، تو آپ نے بتایا جی دیکھیں جی جو ہے نا جی کائنات کو چلانے والا، ہمیں رزق دینے والا کون ہے؟ یہ کون سا جو ہے فلسفی ہے آپ کی؟ کون سا یہ جواب فلاسفی دیا ہے؟ نہیں ہے، اللہ دا خوف تو ڈریا کرو، یہ فلاسفی نہیں ہے، یہ اللہ دی ذات دا نام ہے، فلاسفی نہیں انہوں کہندے، وہیں تسی پڑھے لکھے بنتے ہو، انجینئر نو تسی غلط اچھا، کہندے ہو، آپ تو تسی سب میرے تو بڑے سوال کا گستاخ۔ جواب وہ تسی کون دے یقین گا؟ منو مرزا لنگراں دیو، انجینئر میں دے حساب گا لا آگے؟ لیا، جتھے ہیں دیگ پکے لے جی، السلام علیکم یہ ہمیں سوال کا جواب ملا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں اگر اجازت ہو ایک سوال پوچھ لوں ان سے؟ وہ تو السلام جی علیکم۔ بیٹھے ہوئے اوپر۔ جی وعلیکم جی السلام انسان بھائی۔ اچھا، وہ سوال میرا یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہر بات جو ہے قرآن و حدیث سے کرتا ہے، تو سید صاحب کا ظاہر سی بات ہے ان کی تحقیق ہوگی، انہوں نے ہر بات کو انالائز کیا ہوگا، قرآن و حدیث سے انہوں نے ہر بات کا ثبوت نکالا ہوگا، تو جی مجھے جی مہربانی کریں ایک بات کا ثبوت سید صاحب نکال دیں کہ وہ کہتا ہے کہ قرآن میں ایز سچ اورل سیکس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، مجھے بتا دے کہ کہاں پہ وہ اس کو جو ہے نا جائز کہا گیا۔ ہاں جی سید صاحب، آپ اپنا مائک اوپن کر سکتے ہیں، آپ میرے خیال میں خود بھی کریں ذرا مائک اوپن اپنا۔ اوہو معذرت جی، معذرت، پھر سے اوپن کریں جی۔ ہاں جی کی کہہ رہے ہو؟ اچھا جمیل بھائی نے سوال نہیں سنا، میں اپنے نا موضوع پہ چلو جمیل بھائی آتا ہوں۔ دوبارہ دہراؤ کی کہہ رہے ہو؟ صاحب چاہ پی کے فارغ ہو گئے نے، دسو تسی کی نہیں کہہ رہے نہیں، ہو؟ چاہ اللہ معاف کرے، اسی نہیں چاہ کیوں صاحب پی جڑے کے نا فارغ وہ ہونا، چاہواں صاحب جڑے نے وہ آفیسر نے، تے تسی اتنی دیر بول دے رہے ہو، استدعا کر ایپلیکیشن لکھ کے لیاؤ جمیل بھائی، چلو ایپلیکیشن لکھو، تے سوال لکھو، صاحب مصروف نے جی جی انی چلو اچھا پرابلم آ کے وہ سوال پوچھا ہے تے وہ کہنا ہے جی دسو۔ اچھا میں نا شروع والی بات کمالست دوبارہ دہرا دیتا ہوں، آخر میں قاسم بھائی وہ سوال آپ نے دوبارہ پوچھنا ہے، میں اکیلے نہیں، تو سوال آپ جی نے ٹھیک پوچھنا ہے۔ جی اچھا میں ٹھیک۔ یہ کہہ رہا تھا کہ سید صاحب کہتے ہیں کہ مرزا انجینئر کی ہر بات قرآن و حدیث کے مطابق ہوتی ہے، تو انہوں نے ظاہر سی بات ہے اس کی ہر بات پہ تحقیق کی ہوگی، انہوں نے ثبوت جو ہے ڈھونڈا ہوگا قرآن و حدیث سے، تو ایک میرا سوال ہے، اس کا ثبوت ہمیں دے دے، اس کا جواب ہمیں قرآن و حدیث سے دے دے۔ تو قاسم بھائی اب سوال پوچھتے ہیں آپ سے، تو ہمیں مہربانی کریں قرآن و حدیث ہے نا اس کی دلیل دے دے۔ جی حکم کرو۔
ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ? ले जी ये अच्छा ये बताएं कि मिर्जा इंजीनियर का एक बयान आया। मैं भी फ्री हो गया हूँ, मैं भी जो है ना तुम लोगों की मंजी ठोकूंगा मुसलमानों की, मैं भी मिर्जा जी। जी जी ये मेरा सवाल है, सुन ले उसके बाद मंजी ठोक लें, कोई परेशानी नहीं है जी। आसिम भाई यही सवाल पूछना है, यही सवाल पूछना है। नहीं यार मैं ना थोड़ा जो ना सीरियस मौजू लावा हैं जी ते ना कोई सवाल दो- पूछना। दो- ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਆ ਜਾਓ ਸੀਰੀਅਸ ਮੌਜੂ ਹੈ। 2 मिनट है जो मैं पूछना हूँ, 2 मिनट चल पूछ लो फिर, पूछ लो। 2 मिनट है। हाँ जी, वो मिर्जा अब देखिए इंजीनियर ना कहता है, हमारे जी मिर्जा जी जी इंजीनियर जमील भाई। कहता है कि कुरान और हदीस में, इस्लाम में सच ओरल सेक्स की कोई ममानियत नहीं है। तो सैयद साहब आपसे गुजारिश ये है कि वो उसकी हर बात आपके नज़दीक कुरान और सुन्नत के मुताबिक होती है, तो इसका हमें सबूत दे दे। देखे ना हमारे उस्ताद साहब जो है ना उन्होंने इसका जवाब दिया है। उन्होंने ये कहा है कि आप कॉन्डम चढ़ा लें ऊपर और उसके बाद आप करें तो उसमें कोई ममानियत नहीं। वो हमारे उस्ताद साहब ने जवाब उसका दिया तो है। ਯਾਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੁਝ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਕਿਉਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। चलो जी, उन्हें बयान देता है, ਅਸੀਂ उस बयान पे सवाल कर रहे ਇਹ हैं। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ? ਕੁਛ नहीं, ਇਹ आप ਤੁਸੀਂ गंदी ਕਿੱਥੇ बातें ਸੁਣਿਆ? ना पूछे जो हमारे है, उस्ताद कितना साहब ने सुने? गंदी बातें की है मिर्जा ना, इंजीनियर ने क्या है? हमारे उस्ताद साहब ने जो गंदी बातें की है वो ना पूछे, अच्छी वाली बातें पूछे ना। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣੀ ਹੈ अच्छी ਜੀ? बात यही है ना, ये मिर्जा इंजीनियर ने बयान ਅੱਛਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। देखिए अब ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ नहीं, ਅਗਲੀ सुना, ਗੱਲ उस्ताद ਸੁਣो। जो है ना उन्होंने हमारे उस्ताद साहब जो है ना वो जो बातें अच्छी अच्छी करते हैं ना सिर्फ वो हम सुनते, गंदी बातें नहीं हम सुनते, इसलिए आपने गंदी बात नहीं पूछनी हुई। ये पूछ लीजिए, गंदी बात रू झाड़ के पूछ लीजिए, गंदी बातें नहीं पूछनी, नहीं सरफ न धो के पूछ लीजिए। नहीं अब ये देखिए ना मेरी बात सुनिए, जो हमारे उस्ताद साहब ने कहा है कि कॉन्डम चढ़ा के आप ओरल सेक्स कर सकते हैं। अब ये बात बताने वाली तो नहीं है, आम लोगों को तो बताने वाली नहीं ये बात है। नहीं, हमें बताने वाली नहीं है, लेकिन खुले आम ना लेक्चर में वो रिकॉर्ड करवा के ਮਿਰਜ਼ਾ YouTube पे ਸਾਹਿਬ ਨੇ चढ़ाने ਸਹੀ वाली है। ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। वो ਤੁਸੀਂ सैयद ਭਾਵੇਂ है, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ वो ਕਿਤਾਬਾਂ तेरे- ਖੋਲ ਲਓ, देखा है ਗੱਲ कैसी ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਹੀ मंजी ठोकी ਹੈ। है मेरे ਠੀਕ भाई ਹੈ? ने, कैसी मंजी ਤੁਸੀਂ ठोकी है, ਨਾ देखा आपने? ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰੋ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ओ ਨੇ ਕਿ यार, ਬਹਿਸ करना ऐसे वास्ते पूछ रहे हो, ऐसे ਭਾਈ वास्ते ਫਾਰੂਕ पूछ रहे ਸਾਹਿਬ, हो, ऐसे वास्ते पूछ रहे हैं, हवाला दे दे ताकि ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਸ ਗਿਆ ਰੇ। नस जाना बात नहीं, नस जाना बात नहीं। ਹਾਂ जी जी नस्ल तो नसीब हमारे देना साथ यार। वसीम साहब मौजूद हैं, हमारे साहब वसीम अब्बास साहब मौजूद हैं। जी वसीम अब्बास साहब, वसीम अब्बास साहब अपना माइक ओपन कर करें। रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी वसीम साहब आप इस मिर्जा इंजीनियर के बारे में क्या फरमाएंगे? मिर्जा इंजीनियर के बारे में कहता हूँ कि बहुत ही लानती किस्म का इंसान है जो लोगों को फिर अपने फिका से दूर कर रहा है। बिल्कुल ऐसे कोई शक नहीं। तो जी माशाल्लाह अल्लाह पाक आपके ये- ईमान की हिफाजत करे। तो नीचे एक मर्ज़िया वसीम भाई, आमीन आमीन जी। तो उसको हम ले रहे हैं ऊपर, जरा सुनिएगा। मेरे ख्याल में पता नहीं मर्ज़िया कि नहीं, यानी कि एडवांस माजरत है अगर ये मर्ज़ी नहीं है तो। जी सुहीब यकूब, जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सुहब यकूब साहब, जी आप ये मिर्जा जी के बारे में हमने अपनी कब्र में अपना हिसाब देना है, अली मिर्जा ने अपनी कब्र में अपना हिसाब देना है। अच्छा, तो हमें आप क्या उसको लगे, क्या कर उसको रहे हैं? मानते रहने क्या दो, हो? लगा लगा रहने दो। आप उसको मानते क्या हो वैसे? मैं कुछ भी नहीं मानता। अच्छा चलो ठीक है फिर। मेहरबानी जनाब, बहुत मेहरबानी। जो है आप हमारी पराड पे आए, बड़ा अच्छा लगा हमें। तो जी चोरी बिलाल साहब को मैं ऊपर ले रहा हूँ। जी, हर काफिर ने अपने कब्र में जाके अपना हिसाब खुद देना है, हमने थोड़ी देना है। तो जो जहाँ पे लगा है वो लगा रहने दो भाई, तबलीग क्यों करते हो दीन की?
छोड़ो भाई, जो जहाँ पे लगा लगा रहने दो। लो जी, हमारे साथ चौधरी बिलाल साहब मौजूद हैं। जी बिलाल साहब, हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बिलाल साहेब, ये मिर्जा इंजीनियर के बारे में जी भाई जी। क्या फरमाएंगे आप? यार फरमाना क्या है, देखो दो बातें होती हैं ना हमेशा, जब आपने किसी से चलें वो इख्तिलाफ भी पूछ रखना है लेते ना, हैं। देखिए बिलाल दो भाई, इंशाल्लाह मौका मिलेगा देखो, आपको बात का, तो लेकिन सुनिए। आप पहले ये बता दें कि मिर्जा इंजीनियर के बारे में क्या फरमाएंगे आप, ये बता दें पहले, बाद में मौका देंगे हम इनको आपको। वही फरमा रहा हूँ, सुनो यार। पहले अपना मौकफ दे दे, उसके बाद बोल लीजिएगा। जी देखो दो चीजें हैं यार, ये एक होता है ना मदरसे का पढ़ा हुआ, जैसे 8-10 आदमी पढ़े हों तो हेलो, आवाज उसका क्यों नहीं आ और रही यार? आम आदमी का कंपेयर बनता नहीं। आवाज आ रही है मुझे? मेरी आवाज आ रही है किसी को? जी जी आ रही मुझे है। आवाज बिलाल आ रही भाई है आपको किसी आवाज की, आ रही है? माइक ही नहीं चल रहा किसी का, पता नहीं। हेलो जी जी हेलो। आवाज बिलाल भाई को आ रही है आवाज? बिलाल भाई, काशिफ भाई की मुझे आवाज आ किसी रही की है? आवाज नहीं आ रही, मुझे आपकी आवाज आई है अभी, अपना किलर भाई। अच्छा 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 तो ये कौन बोल रहा है माइक पे? किसी को बोल रहा है? जी जी, ये बिलाल साहब आए हैं ऊपर, वो आपको ये आवाज आ रही होगी, फिर जमील भाई को भी नहीं आ रही, अबू हसन भाई को भी नहीं आ रही, इनोसेंट भाई को भी नहीं आ रही। तो जो मेरे ख्याल में बिलाल भाई को भी नहीं आ रही होगी। बिलाल भाई आ रही है आवाज हमारी आपको? हेलो, आ रही है यार, मुझे आप सबकी आवाज आ रही है। पता नहीं, फिर फिर लगे रहो, आपस में ही लगे रहो। यार गीत को गीत है यार। ले जी हमारे साथ ਪੁੱਛ ਰਹੇ हैं, तू सानू दो गल्लां दसी जा रहे हैं अगू। लो जो हमारे साथ जनाब जो है वैस जनाब खान साहब आ गए हैं। जी वैस खान साहब। हाँ जी वैस खान साहब। ना वैस भाई, ये मिर्जा इंजीनियर के बारे में क्या फरमाएंगे आप? सर ये हरामी गुस्ताख कादियानी का नाजायज औलाद है, ये कभी एक वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जियो जियो जियो। की खुश कीता ही अवैस, खुश कीता ही। वेरी गुड। एक मिनट, सिर्फ एक मिनट, कादियानी एक की मिनट, नजायज एक औलाद है। मिनट, एक मिनट। अच्छा जी, हम अब डॉक्टर फिजान साहब को दावत देते हैं कि ये अवैस खान साहब से जो है ना गुफ्तगू का आगाज करें। जी फिजान भट्ट साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो फिजान भट्ट भाई, ये जो है अवैस खान साहब बोल रहे हैं कि मिर्जा इंजीनियर हरामी है, पक्का पक्का हरामी है। तो बाकी अब मेरी फील्ड से निकल के आपकी फील्ड में जो ना बॉल आ गया, तो आप पूछ तो सकते हैं। ये मिर्जा कादियानी के बारे में अवैस खान साहब क्या कहते हैं? ये अवैस खान साहब बोले जनाब। ओ अवैस खान साहब, अवैस वो साहब खान साहब आपकी आवाज बोले। नहीं आ रही। ये आवाज तो आ रही है सर। जी जी अब आ रही है देखो आपकी ये आवाज। ये मिर्जा ना तो- कादियानी के बारे में क्या कहते हैं? ये तो कभी ना तो इसको कभी बोलते हैं मैं देवबंद वाला हूँ, कभी बोलते हैं मैं बरेलवी हूँ, कभी अहले शिया बोलते हैं, कभी क्या बोलते हैं, मगर असल में ये कादियानियों की नजायज औलाद है, एक छुपा हुआ है बस सिर्फ। सही। थोड़ा अच्छा सा- मुझे जरा ये बताएं कि आप शिया हैं कि सुन्नी हैं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो मसले के देवबंद से तलक रखने वाला हूँ। ओ जी एम्बुलेंस आ गई है। चलो यार नाच जाना है, अगला बंदा ले आओ यार। जी आ रहे। प्रोग्राम तो बढ़ गया। जिंदाबाद वाले ने चुको जी। ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਪਤਾ होता क्या कि वहाबियां देवबंदियां है ना, जी इनके साथ अगर तो ये हमारे साथ तौहीद वगैरह या और कुछ मामला गुफ्तगू करना चाहे ना तो हम कर लें, लेकिन अभी जो कुफरिया इबारत है ना, इन बेचारों को अक्सरियत को नहीं पता इन चीज़ों का, तो फिर वो यहाँ इनकार कर देते हैं, ये कहते हैं जी हमारी किताबें नहीं है, तो फिर उनसे गुफ्तगू तो नहीं ना होती, इस वजह से इनकार देता हूँ इन्हें। लो जी, ये हमारे साथ मुजाहिद साहब आए हैं। मुजाहिद पूरा नाम क्या जी? पढ़ लें, मुजाहिद अब्दुल वहाब साहब। जी मुजाहिद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा मुजाहिद साहब, आप मिर्जा इंजीनियर के बारे में क्या फरमाएंगे?
मिर्जा साहब के बारे में क्या फरमाना है, इससे पहले मैं अपना तारुफ करवा दूं। जी मैं भी मेहरबानी। बताते खुद बरेलवी मसलक जिसको कहते हैं, उससे मेरे दादा दादे बाप तक वहाँ से ताल्लुक है। उसके बाद फिर हमने अच्छा बरेलवी मसलक नहीं ठहर पूरा नाम जी इन्हें बात मुकम्मल करना है। जी जी करें। उसके बाद जी मेरी जिंदगी 8-10 साल बाहर की गुजरी हुई है, यूएई से लेके ये सिंगापुर तक। तो उसके बाद हमने थोड़ा सा इस्लाम को जानना शुरू किया, क्योंकि हम तो हैं पैदाइशी मुसलमान। आपकी बात की वो सवाल करने लगा। बात तो मैंने अभी बात पूरी की नहीं सर, सवाल ऑटोबायोग्राफी तो हमने पूछी नहीं मुजाहिद साहब। जब हम आपकी ऑटोबायोग्राफी पूछेंगे ना तो फिर आप हमें ये सारी चीजें बताइएगा। फिलहाल बताएं कि तो मिर्जा इंजीनियर साहब के बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है। हाँ, अगर आपने खाली मिर्जा के बारे में पूछना है जी 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 तो भाई उस बारे में मेरी इतनी ज़ात नहीं है, ना हमें अल्लाह पाक की तरफ से इतना इख्तियार है कि हम किसी के बारे में तजिया कर सके ये कैसा है कैसा नहीं है, और ना ही हम ठेकेदार है किसी को मुसलमान ठहराने के या कुफ्र ठहराने। ये फिलॉसफर है जिनके पास ठेका है वो कर सकते हैं। नहीं वो नबी देखे ना जी, उनका मतलब है, मेरी बात सुने, उनका मतलब है कि नबी की जात पे कुछ भी नहीं बोल सकते आप। क्या भाई आप मिर्जे को नबी बोलते हैं? नहीं वाह 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 माशाल्लाह, ये इल्मी किताबें माशाल्लाह ये हमारे उस्ताद साहब ने तैयार की हैं। देखा आसिफ भाई, ये हम आ रही है या पता नहीं आप लोगों को जवाब मिल गया? नहीं जवाब अच्छा आपका मुझे एक चीज कल बताएं, आएगा। मुझे एक चीज बताएं मुजाहिद साहब। मिर्जा इंजीनियर साहब फरमाते हैं कि जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम थे ना, उनकी तौहीद नाक़िस थी और मेरी तौहीद कामिल है, क्योंकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ 70 बंदे जुड़े थे और मेरी तौहीद जो मैंने बयान की है ना, मेरे साथ 15-20 लाख लोग जुड़े हैं। तो तौहीद तो वही है जो अल्लाह पाक, देखिए जी तौहीद तो वही ठीक है ना जो अल्लाह पाक ने जिसका जिक्र किया कुरान पाक में। आप कौन होते हैं? नहीं, जो बात मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब आप दे नहीं दे। आप अपने मैंने दे दिया ना भाई। नहीं, क्या जवाब दिया आपने? हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तौहीद नाक़िस थी। आप मुझे जबरदस्ती हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तौहीद नाक़िस थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तौहीद नाक़िस थी। ये पढ़े ना हमने, क्या टॉपिक क्या लगाया हुआ हमने? टॉपिक क्या लगाया हुआ? टॉपिक लगाया आपने मिर्जा इंजीनियर गुस्ताख क्यों नहीं है। आप बताएं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो थे उनकी तौहीद नाक़िस थी? नहीं, कुरान पाक में तो उनकी हक है, हक सच थी तौहीद। तो जो बंदा ये कहे कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तौहीद नाक़िस थी, बल्कि वो ऐसी तौहीद बयान करते थे कि लोग उनसे दूर भागते थे, और मैंने सही तौहीद बयान की है, वो बंदा गुस्ताख है या नहीं है? सर ये मैं आप फरमा रहे हैं ना, मैं अपनी जबान से खुद सुनाइएगा जरा, कासिम भाई वीडियो सुनाइएगा जरा, कानों से कासिम भाई वीडियो सुनाइएगा। करूंगा तो फिर आपसे जवाब आपने मानना फिर भी नहीं, आपने मानना फिर भी नहीं। आप मनवा रहे मैंने भेजी थी आपको, मेरा मैंने भेजी थी आपको। मैं देखता हूँ। आप ओपिनियन ले रहे हैं या मनवाना चाह रहे हैं? अब ये बताएं पहले अपना। मनवाना चाह रहे हैं? आप कहते हैं ना कि आप बड़े पक्के सच्चे मुसलमान हैं, तो हर मैंने ये बात नहीं की। हर मुसलमान ने ना नबी अलैहिस्सलाम फरमाती है कि देखे ना, बात सुने भाई जान, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ईमान का सबसे बेहतर दर्जा वो है कि इंसान किसी बुराई को हाथ से रोके। बिल्कुल, अगर हाथ से भी नहीं रोक सकता ना तो फिर उसको जुबान से रोके। अगर जुबान से भी नहीं रोक सकता ना तो फिर उसको दिल में बुरा जाने। ये ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है। अब आप मुझे बताएं कि एक बंदा अंबिया की गुस्ताखी, अंबिया की तौहीन करे, उसको हम जुबान से गुस्ताख भी नहीं कहते, तो फिर हमारा ईमान कहाँ रहा? नहीं जी, हुर्मत अंबिया कराम तो कुरान पाक में भी बयान की गई है ना। कोई भी अगर तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, स्टेट में आप बताएं कि भाई अगर नबी अगर अंबिया की तौहीन एक बंदा कह रहा है कि नाक़िस है, और वो ऐसी तौहीद बयान करते थे कि लोग उनसे दूर भागते थे, तो ये तो वो नबी की तौहीन कर रहा है, तो आप क्यों घबरा रहे हैं? आप अपनी जुबान से कहने से मैं घबरा नहीं रहा, मुझे इख्तियार नहीं है ना। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कौन हूँ? हमें नबी अलैहिस्सलाम ने इख्तियार दिया ना, हमें नबी अलैहिस्सलाम ने इख्तियार दिया ना, हमें नबी अलैहिस्सलाम ने इख्तियार दिया ना। वक्त के काजी
वक्त मौजूद के है आपके काजी पास मौजूद कासिम है, भाई? शरिया मैंने आपको अदालत जो वीडियो मौजूद है, सेंड आप की थी ना, जाएं। आपको मैंने इकट्ठी वीडियो सेंड की थी ना, जो उसके अंदर वो वीडियो मौजूद है। मैं आपको मुजाहिद भाई, आप क्या सोच के ऊपर आए थे बात करने के लिए? आपने देखा तो है पे क्या लगाया हुआ है? मैं लाइव कमेंट आ रहे थे, लोग बात कर रहे थे, मैंने कहा हम भी अपना जाती राय दे दें। मैं तो राय देने के लिए आया था, मैं इस सेंस में ये क्या, ये कैसी राय दे दी आपने? आपको तो पता ही नहीं भी टॉपिक क्या है, बात क्या हो रही है, अपनी राय देने आ गए आप। मैंने क्या गलत राय दिया? आपने मुझे कहा जी मिर्जा ने ऐसा कहा है, सुने मेरी बात, आपने कहा जी उसने ऐसा कहा है, गुस्ताखी की है। मैंने आपसे अर्ज की सर, मैंने अपने कानों से या आंखों से नहीं मैं देखा। सुनाता हूँ आपको। ठीक है जी मैं सुनवा देता हूँ। अच्छा, मैं सुनवा दूँ अगर इजाजत हो तो। नहीं सुनाए आप, इसमें सुनाने में क्या है? मगर आप किसी को जबरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते कि आप हाँ मेरे साथ खड़े हो जाए। भाईजान हमें सिर्फ ये पता चल जाएगा ना कि आप खुद क्या है, हमें ये तो पता चल जाएगा ना। वो आपने मेरा पूछ के क्या कर रहे हैं आप ये बताएं? आप किस लोगों का पूछ के आप लोगों का ईमान तोल के क्या करना चाहिए? आपका मकसद क्या है लोगों का ईमान तोल के? जाहिद साहब, जब आपको ये भी नहीं पता ऊपर मौजू क्या है, आप कह रहे हैं कि आपने मेरा पूछ के करना क्या है, तो तुसी वेंदे ही कसमें चल दिया चपेड़ा जो अपना सिर वाड़ देता है। हेलो मैंने भी मारा। वैसे भाई वो यार वीडियो नहीं है, आप मुझे मैं भेजने लगा हूँ, मैं भेजने भेजिए। लगा हूँ। वो असल में तो मेरा ये ना व्हाट्सएप इस पे ना कोई मसला बना है, वीडियो प्ले नहीं हो रही। मैं आपको सेंड करता हूँ। मुझे भेज दे, मैं और इंशाल्लाह सर मुझे भेजने का मतलब आप मकसद क्या है आपका? इस सवाल का मकसद आप चाहते क्या है? इन द एंड कंक्लूजन क्या चाहते हैं? यार जो मकसद- मौजू लगा हुआ है यार, नहीं, आप मुझसे क्या चाहते हैं मुझे ये दवाई, बताओ। आप दवाई वगैरह तो नहीं खाते? कोई मसलन दिमागी दवाई को खाते हो जिससे नशा हो जाता हो? देखिए मैं तो आपसे इज्जत और एहतराम से ही बात कर रहा हूँ जितने आप नहीं लोग नहीं हैं, नहीं ठीक नहीं है? यार, मैं आप मजाक ही- नहीं कर रहा, आप ही सीरियस घुमा मैं पूछ रहा फिरा हूँ, के- सीरियस पूछ रहा हूँ। नहीं आप घुमा फिरा के अजीबो गरीब सी ये ले बातें कर ये ले रहे हैं। ये ले सुने जरा। ये लम्हा फिक्री है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम पे तो ईमान लाने वाले लोग 78 हो और आप 15-20 लाख का मजमा लेके बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कोई फर्क लगा हुआ है कहीं पे कि आप वो वाली तौहीद बयान नहीं कर रहे जिससे मजमे छट जाते हैं। जैसे ही आप वो बयान करेंगे तो मजमे छटेंगे। ये जो हमारी दावत का इतना बड़ा कदकाट हुआ है, यकीन करें मैं तो कई बार अकेले में बैठ के ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मेरा तो वजीफा ही है, आपको पता है, अस्मा याद अपने से। हाँ जी मुजाहिद साहब, वो कहता है कि तौहीद बयान करते थे ना हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, तो लोगों का मजमा झट जाता था और उनके साथ 78 लोग भी नहीं अटैच हुए थे। मेरी तौहीद जो मैंने बयान की है ना, उसकी बरकत से 15-20 लाख लोग मेरे साथ जुड़ गए। जी अपना मुजाहिद साहब, अब आप गैरत का मुजाहरा आपने करना है। अब आपने जो है ना, वो अगर है आपके अंदर तो। जी मुजाहिद साहब। मुजाहिद साहब का माइक बंद है, माइक ओपन कर रहे हैं मेरा साहब। आवाज आ रही है? जी आ आवाज रही आ रही है? हाँ जी अब आ रही, जी जी अब आ रही। बहुत मोहतरम भाई, अब ये आप अपने अल्फाज पे गौर करें, आप किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, गैरत और फलां। आप इतनी देर से इस लिहाज, आप लगता नहीं है मुझे कि आप चलिए आप हमें किसी भी गालियां निकाल प्लेटफॉर्म लेना, पे इस्लाम आप की अपना इशाअत जो है कर ना, रहे हैं। आप कम अपना से कम अपना being गुस्सा a good निकाल लें, हमें मुसलमान, गालियां हाँ? निकाल लें, अब सर, अपना मैं गुस्सा नहीं निकाल लें, हमें निकाल गालियां रहा। निकाल लें, ओह। लेकिन हमें इसका जवाब दे दें कि ये जो उसने कहा है ना कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तौहीद नाक़िस थी, मेरी कामिल है, इसका जवाब दे दें। सर ये तो आपने अपने अल्फाज बनाए ना, उनकी चले फिर सुन लें, फिर सुन लें। आप मुझे 10 दफा कहेंगे, मैं 10 दफा चलाऊंगा, मैं 10 दफा चलाऊंगा, मैं 10 दफा चलाऊंगा। चलाएं चलाएं। कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम पे तो ईमान लाने वाले लोग 78 हो और आप 15-20 लाख का मजमा लेके बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कोई फर्क लगा हुआ है कहीं पे। हाँ, वो कहते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ 78 लोग जुड़े थे और मेरे साथ 15-20 लाख लोग जुड़े हैं, तो मेरी तौहीद बयान करने में और नूह की तौहीद बयान करने में फर्क था। एक मिनट, अच्छा उसमें क्या जुड़ा हुआ था, उन्होंने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया? फर्क। इसका मतलब है कोई फर्क लगा हुआ है कहीं पे। ये फिर देख, फर्क लगा हुआ है। 20 लाख का मजमा लेके बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कोई फर्क लगा हुआ है कहीं पे। वो कहता है कि हजरत नूह के साथ 78 लोग थे, मेरे साथ 15-20 लाख लोग हैं, तो जारी बात है उनकी तौहीद बयान करने में और मेरी तौहीद बयान करने में फर्क है। तो होगा, फर्क तो होगा, वही बात है। तो नाकस हुई ना उनकी तौहीद हज़रत नूह अरे ये अलैहिस्सलाम। अगला लफ्ज आप अपनी तरफ से क्यों एडिशन करते हैं? मुझे तो इस समय भाई मुजाहिद साहब, इसका मतलब और माना क्या नहीं कर रहा है, आप बता देना। एक बंदा मुआजना कर रहा है ना खुद का हज़रत नूह के साथ, वो कहता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जो तौहीद बयान की ना, तो मजमे छट गए और मैंने जो तौहीद बयान किया तो लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं।
सर आप लोग मेरे साथ जुड़ गए की तशरीह इतनी तफसील कर रहे हैं, इससे बेहतर आप और भाईजान है जो उसका माना नहीं कर रहा आप कर दो है, ना। आप बता देना, आप बता दें। आपको उससे मुजाहिद भाई आप करें ना फिर तशरीह, उसके पास चले आप करें ना अपने अल्फाज में। भाई हम क्यों उसके पास जाएं, हम क्यों जाएं मैं आपका गुलाम हूँ, भाई? आपको जवाब देने के ऊपर फिर इधर आप बहस करने के लिए क्यों आए? आप यहाँ तशरीफ ही ना लाते ना मुजाहिद साहब, आप यहाँ तशरीफ ही ना लाते, आप यहाँ पे तशरीफ ही ना लाते। यहाँ पे अब ये देखिए ये ऊपर आए हैं अबू मुकद्दर भाई आए हैं, ये एक तो मिर्जा इंजीनियर के स्टूडेंट है और साथ में राफजी भी हैं। अब ये देखिएगा ये बिल्कुल सही जवाब देंगे और ये पता क्या कहेंगे, ये कहेंगे वीडियो पूरी चलाओ। ये जवाब भी देखिएगा इनका, कहेंगे पूरी वीडियो चलाओ। हाँ जी, तुम लोग सिर्फ यहाँ कीड़े निकालने के लिए बैठे हो, कीड़ों वाली मशीन। अच्छा यार मुझे वो बताओ, हमारे समरा में जो एक हिजड़ा गया हुआ, तुम लोग सिर्फ कीड़े निकालना ही जानते हो, उसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं। अच्छा मुझे बताओ, हमारे समरा में वो 12वां हिजड़ा गया हुआ है 1200 सालों से, वो बाहर क्यों नहीं आ रहा? ठंड ज्यादा हो गई है? इसका तो जवाब दो पहले। एक हमारे समरा से बाहर नहीं आ रहा हिजड़ा, एक जो है वो एकेडमी से बाहर नहीं आ रहा। ये मुमासरत बड़ी है दोनों में। एक 1200 सालों से बाहर नहीं आ रहा, एक 12 सालों से बाहर नहीं आ रहा। ये आसफ भाई है आज नई चीज जैसे मेरे ذہن में भी आई है। और मिर्जा कादियानी भी नहीं बाहर आता था। अच्छा मजे की बात 1200 सालों से बाहर नहीं आया, एक 12 सालों से नहीं आ मुझे रहा। चार्ज लगा दो यहाँ पे। अच्छा मजे की बात फजान भाई, ये जो निक्का हिजड़ा है ना, ये बोलता है कि 1200 साल में कोई बंदा ही नहीं हुआ कि जिसको इस्लाम की समझ आई हो मेरे जितनी, वो भी 1200 साल। वो सही कह रहा है जनाब, 1200 साल में कोई ऐसा बंदा नहीं हुआ। अच्छा जी, ये जरा देखें फिजान भाई, ये देखें ये नीचे हमारा एक भाई है मलिक साहब, उन्होंने लिखा है कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। और ये नीचे अबू मुकद्दर भाई ने लिखा है कि बेशक, एक तो बेशक भी गलत लिखा है, ये भी नहीं लिखना आता, उर्दू भी नहीं लिखनी आती। दूसरे नंबर पे इनको अपने मिर्जा इंजीनियर के दावा जात का नहीं पता। मिर्जा इंजीनियर का दावा है कि 1200-1400 साल के अंदर जितने भी मुसलमान गुजरे हैं ना, वो सारे कुफर पे मरे हैं क्योंकि उन तक सही इस्लाम की दावत नहीं पहुंची। और मैं जो अब सही दावत मैंने बयान की है, तो ये बंदा तो कह रहा है कि भाई मैं तो, जो मेरी तौहीद है वो अंबिया से भी बढ़ के है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम कहता है वो अगर ये तरह मजमा देख लेना। मेरा एक सवाल है, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मेरा एक सवाल है छोटा सा आप लोगों से, कि आप लोग पूरा दिन यहाँ बैठकर बहस करते हैं, उससे बेहतर है आप अपने बड़े किसी आलिम से बात करें, भाई हमारा सवाल बात खत्म कराएं। हमसे ना सवाल करें, हमारी दुकानें बंद होगी, हमसे ना सवाल करें। दुकानें बंद हो गई है तो फिर यहाँ दुकानें खोल के क्यों बैठे हो? का जवाब तो दो ना यार। फिर यहाँ दुकानें खोल के क्यों बैठे हो? फिर यहाँ से भी निकल जाओ ना। 1200 साल से एक हिजड़ा जो गार में गया वो बाहर क्यों नहीं आ रहा? इसका जवाब दो। इधर नहीं बोलना है, मुंह नहीं फुटता है। बताओ यार मुकद्दर, चलो जी मैं लेता हूँ जी, मैं लेता हूँ। वो एक भाई हैं बोलते हैं, मैं जी जवाब देता हूँ आपको। ये नईम साहब आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी। नईम साहब कैसे हैं आप? पहले तो ये बताएं ना साहब। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बड़ा एहसान है। तो भाई ने पहले हमसे नहीं पूछना, पहले आपने हमें बताना है ये जो मौजू है ना, ये इस पे आप गुफ्तगू करेंगे या आपने भी फिलासफी झाड़नी है हमारे साथ? जी जी नहीं नहीं नहीं, मैं भाईजान इसी मौजू पे बात करूंगा, मैं इसी मौजू पे बात करूंगा, आप फिक्र ना करें। जी बिस्मिल्लाह। आप मुझे सिर्फ पहले ये बता दें अकीदा तौहीद क्या है? ये तो आपने आपने मेरी बात सुने भाई, मेरी बात सुने। हर बंदा अपनी फिलासफी, आप भी अपनी फिलासफी झाड़ रहे हैं ना। अपने मतलब की बात सिर्फ बताते हैं ना, बताते हैं। एक सवाल आपका होगा, एक मेरा, ठीक है? मेरी बात सुन लें। आपने अकीदा तौहीद के मुतालिक पूछा है ना, मैं आपको उसकी तारीफ बताऊंगा। तौहीद की इकसाम जो है फिर वो आप मुझे बताएंगे। एक सवाल मेरा, एक सवाल आपका, ठीक है? कबूल है आपको? अपना माइक ओपन करें नईम साहब। जनाब नईम साहब,
नहीं साहब अपना अपना माइक माइक ओपन करें माइक छोकरा ਭਾਵੇਂ साहब। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰੋਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਘਰ ਖਲੋ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ ਆਪੀ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਕਹੇਗੀ ਕੀ ਰੋਲਾ ਪਾ ਰਹੇ हाँ जी नईम साहब माइक अनम्यूट करें अपना माइक अनम्यूट जी करें। जी 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 मेरा माइक अनम्यूट है। अच्छा मैं जी जी सिर्फ अब आपसे ये बोल रहा हूँ मैंने कि आपसे अकीदा पूछा तौहीद है का पता है आपको? और मैं आपसे अर्ज वही करने लगा हूँ जनाब, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि मैं इसका तौहीद माइक की म्यूट तारीफ ही अच्छा बताता था। हूँ। जी जी मैंने आपसे अर्ज किया कि मैं आपको तौहीद की तारीफ सुनाता हूँ, आप तौहीद की इकसाम मुझे बता दें ताकि दोनों तमाम हज़रात को पता चल जाए ना कि अकीदा तौहीद पर गुफ्तगू कौन कर सकता है। ठीक है और नईम साहब माइक ओपन करो, बंद है। ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਫਿਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਕਿ ਮਰਜ਼ਈ ਹੱਥੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੂੜੀ ਖਾ ਲਵੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ अल्लाह माफ करे आप अगर उसके वो जाहल जो था मिर्जा कादियानी नहीं नहीं अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। नहीं, हम अगर नहीं उससे हम आपका नहीं हम मुनाजरा हो जाता ना वल्ला तो वो आपके सामने आपका अच्छा 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 लो जी लो जी लो मरज़ई आ गया जी। अच्छा, खोल के ठहरो मरज़ई यार, सामने प्यार आया से। मुझसे ए जे मुतशद्दद मरज़ई। प्यार से बात करें यार। जी जी मैं अर्ज करता हूँ इन्हें। देखो नईम साहब कि मैंने आपसे अर्ज किया कि मैं आपको तौहीद की तारीफ बताता हूँ, आप मुझे तौहीद की इकसाम बताएंगे। फिर कबूल है आपको ये चीज़? एक सवाल आपका फिर एक सवाल आगे मेरा, ऐसे करते हैं हम अपनी डिबेट को आगे लेकर चलते हैं ताकि लोगों को समझ लग जाए। क्या कहते हैं? माइक फिरकों म्यूट की है जी। दुकानें बंद, डैमेज हैज बीन डन। हाँ ये नाम है जवाब दें भाईजान, आप डिफेंड करते हैं ये बोली आंदा हाजे। रसूलुल्लाह, चिश्ती रसूलुल्लाह। काजे भाई बोली इन्होंने आंदा। कमेंट लगाई। यार तौहीद पे पीछे बोलता पे आजी, पीछे बोलता पे आजी। कोई 15 मिनट बोलता रहा। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं आपको कह रहा हूँ कि तौहीद पे गुफ्तगू कर रही हैं हमें, तौहीद पे। अभी बाकी मौजूआत पे तो हम बाद में आएंगे। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ एक ਤੋਂ बार ये माइक बंद कर सकते हैं ना, हमें भी पता है इस तरह की नीम साहब बात सुनिए आप लोगों के पास नीम आप तो कहते हैं नीम साहब हेलो हेलो नीम एक साहब एक मिनट मिनट यार भाईजान। एक मिनट नीम यार, साहब एक मिनट प्लीज मेरी बात नहीं, सुनो, नहीं, नीम साहब, यार, एक मिनट, ये हो गया। आपकी नीम बात साहब, सुनूंगा नहीं भाईजान, मैं बल्ला आपकी बात सुनूं, मैं इधर सुनने के लिए बैठा हूं, मैं यार। आपकी बात सुनूंगा, मैं आपकी बात बल्ला सुनूंगा। सिर्फ ये बता दें आपका असफ भाई मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਅਬਦੁਲ ਵਾਹਦੀ ਬਦਾਮ ਭੇਜਣੇ ਨੇ ਅਬਦੁਲ ਵਾਹਦੀ ਬਦਾਮ आप कहते हैं इंजीनियर के पास डिग्री नहीं, आपके पप्पा जानी के ਯਾਰ पास ਇੰਨਾ कौन ਦਿਮਾਗ सी ਹੈ डिग्री ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ आपके पास आपके अच्छा पप्पा नहीं मैं गल सुन ले यार, मैं तेरे नाल गल करना। की दुकानें बंद, डैमेज हैज बीन डन। और नहीं मैं अपना माइक ओपन करते ना, बोली ना जरा आराम नाल सुनी गल पे। यार माइक मेरा ओपन होता है, यार बंद तो- करते हैं। यार तेरा माइक तू बंद करने आ, तू बोली जाना बोली जाना बोली जाना। तो यार आपके पास जवाब ही नहीं है। चलो तू जवाब लिया ही नहीं था साडे कोल, जवाब कर देना जवाब दो जेडी माइक तेरे नाल बंद करो, फजान भाई ने जवाब गल दो। कीती है। मेरी गल सुन, मेरी गल सुन। तेनू फजान भाई आंदे पे सन कि एक सवाल तेरा ते एक सवाल मेरा भी होना। जी ये मंजूर है तेनू? जी जी लो जी फजान भाई बोले आप। लो जी वो बैक कर गया। ਉਹ ਥੱਲੇ नहीं ਲੱਗਾ साहब मैंने अर्ज किया कि एक सवाल आपका होगा एक सवाल मेरा होगा, कबूल है आपको? ये जी रिपोर्ट मार नहीं 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 आपके एक ही सवाल पे ना 3 बार आपको कहना पड़ेगा कबूल कबूल कबूल। लो जी हमारे साथ मतीउल्ला नासरी साहब आए हैं जी। फजान डॉक्टर फजान भाई आ भी जा यार ये की गल जी है जी नईम साहब माजरत, मेरा नेट थोड़ा स्लो हो गया था। अब अच्छा मैंने आपसे अर्ज किया कि हाले भी अच्छा, करो। मैंने सवाल ये किया कि एक सवाल आपने अभी मुझसे किया, मैं उसका जवाब देता हूँ, फिर मैं एक सवाल करूंगा, उसका जवाब देंगे? नहीं नहीं मतीउल्ला साहब आए ने जी, ये नईम साहब तो नीचे बैठे हुए हैं अब। उनका टाइम खत्म हो सब गया। तो नजर नहीं आ रहे मुझे ये है नजर आ रहे हैं, लेकिन वो जो है वो ना स्लो आ रहे हैं ऊपर। मैं इनको नीचे उतार दूं, फिर ले लेता हूं। जी मैं फिर लेता हूँ जी, मैंने नीचे उतार दिया। आप जी एक बार फिर आए। फैजान भाई को क्या मेरी आवाज आ रही है? मैं भी ट्रांसलेटर टूल यूज करता पाया कि आवाज कोई चेंज हो गई हो। अच्छा फजान भाई आपका नेट नहीं सही, फजान भाई आपका नेट खराब है। और नहीं मैं तू बैक भज जाना हर बारी उत्ते आके।
ਥੱਲੇ ਤਲਾ ਚੱਲ ਸਟੋਸ ਤਲਾ ਸਟੋਸ ਫੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਆ ਇੱਕ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਫੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਆ ਤੂੰ ਕਿਦਾਂ ਮਲ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਦਾ ਨੈਟ ਖਰਾਬ ਜੇ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲਣਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾ ਹਾਂ ਜੀ ਆਗ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਗੁਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਲ ਸਾਹਿਬ जनाब गुल साहेब मैं बॉस ना बिजी हाँ थोड़ा लेकिन उत्ते मैं बैठांगा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ 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 ਫਿਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੈਠੋ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ओके 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 ला दो मिनट पहले ला दो मैं फिर आ गया जमील भाई जजाकल्ला जमील भाई आपका भी नेट कमजोर चल रहा है यार ब्रॉड इसीलिए नीचे गिर गई है एकदम जी 2 बंदों का ब्रॉड से वो मेरा नेट कनेक्ट नहीं हो रहा था सही लो जी हमारे साथ हमजा भाई आ चुके हैं कोई नहीं अच्छा फिर क्यों हमजा सूटे आला हमजा सूटे आला हमजा सूटे आला अच्छा फिर क्यों आती हमजा फिरकों की दुकानें बंद चलो अबू हसन भाई बैठे कुछ नहीं कहता मैं जी हमजा भाई ये हमने सवाल लगाया क्या आप पढ़ सकते हैं सवाल को जी जी सर ये एक और वो चिश्ती रसूल अल्लाह क्या सीन है सर वो उसमें रामपुरी नहीं है बताते सर बताते हैं आपको आप देखें ना हराम खोरी पे उतरा है अगर मैं बोल दूं कि मिर्जा जीनिया ने अपने मानने वालों की माओ को एक से ज्यादा शोहरों की जो है ना उसने बोला है आप ले सकते हो आपने बोला ये कौन सी गुफ्तगू इंजीनियर तो शाही आपने बोला ना इंजीनियर तो शाही कोई नहीं आप मुझे बताइए चिश्ती रसूल अल्लाह रामपुरी कादियानी की है और गल तो सुन ला होना सुना आप बताएं मुझे कि मिर्जा कादियानी के बारे में आप सर मिर्जा कादियानी है मिर्जा कादियानी है मिर्जा जाहिल है मिर्जा रामखोर है सब मान लिया आप बताएं अच्छा मिर्जा इंजीनियर भी रामी है जी जी सर चले आप मिर्जा इंजीनियर भी रामी है ये मान लिया आपकी खातिर चलेंगे भी मान लिया भाई मिर्जा इंजीनियर भी रामी है आप बताएं मिर्जा इंजीनियर रामी है कि नहीं आप बताएं चिश्ती रसूल अल्लाह यार मैं कह रहा हूँ मिर्जा इंजीनियर हरामी है कि नहीं वो बता आप जितना बताएं जिस अगर ये वाकया सच है तो गाल सुन ले मैं बोल रहा हूँ कि मिर्जा इंजीनियर हरामी है कि नहीं वो बताओ हमजा हमजा जी हमजा आप बोल नहीं रहे हमजा साहब क्या बात है क्यों नहीं बोलते आप हमजा साहब हमजा यार आपको यार वो क्या रहा है मैं पूछ रहा हूँ कि मिर्जा इंजीनियर हरामी है कि नहीं यार ये तो जो है म्यूट लगा लेता खुद को ये साथ सिगरेट का निशान भी बनाया हुआ है नशैया गूंगा हो गया जी वो सिगरेट का निशान लगा के आए हुए हैं तो देखे ना गुस्सा भी आ गया उनको हमारे साहब जी मोहम्मद इशफाक साहब हैं गालिबन एक वो जी वो आ रहे नहीं ये अबू हसन भाई ने एक वो लगाई है अबू हसन भाई की फोटो बड़ी कर दें मैं कर रहा हूँ ये बाबा जो है ना ये इसका नाम था मदूदी और ये भी चिश्ती था और ये इसके ऊपर ये भी बताइएगा ये काफर था ये क्या नाम है ये नीचे जो अभी आया था दे दे जी क्या बोला भाई मुझे पूछा है कासिम भाई जी जी ये बगैरत का बच्चा हमजा जो है मैं ये कह रहा हूँ किसी रंडी की औलाद और चले कोई नहीं लो जी ये आसफ भाई ये आ गए हैं नईम साहब मरज़ई साहब आ गए हैं फिर से ऊपर अब देखते हैं बोल अच्छा नईम साहब आपने बैग पे नहीं जाना अब मैं बता रहा हूँ आपको नहीं यार बैग पे कहाँ जाता हूँ आप ही गिरा देते हैं आप ही म्यूट नहीं भाई आप बैग पे जाते हो हमें शो होता है तो हम आपको नीचे गिराते हैं सही है अब आपने बैग पे नहीं जाना जी 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 अच्छा नईम साहब ये बताइएगा ये किताब ये जो मैंने लगाया है ये टाइटल ये पेज भी लगाया है जो ये किताब किसकी लिखी हुई है पढ़िएगा जरा हज़रत बायज़ीद बस्तामी ये है इल्मी किताब ये वाली नहीं ये किताब किसने लिखी है और क्या लिखा है इसका नाम क्या लिखा है आइडिया ये मतलब यार ये हज़रत बायज़ीद बस्तामी लिखा हुआ है ये और नीचे जिन्होंने किताब लिखी है उनका क्या नाम लिखा है हाँ?
यार अपना क्या नाम है आपका यार, ये आप जो बोल रहे हैं कि किलर। हाँ जी, बोल रहे हैं मैंने कि कहा ये ये जो कौन बात कर रहे हैं? मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ। वो सवाल ये पूछे आसफ भाई, ये जो किताब का नाम पढ़ा है आपने, इस किताब को किसने इसका तर्जमा किया हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है, किस बंदे ने लिखा हुआ है इस किताब को? वो नहीं, मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता, मतलब किसने लिखा है, मैंने नहीं। जी ये जो 7 बंदे की जो है यानी बड़ी स्क्रीन पे फोटो लगी है, ये कौन है पता है आपको? ये सफेद दाढ़ी वाले? हाँ हाँ, नहीं, ये मुझे नहीं भाई पता। इनका नाम है आपके दादा उस्ताद हैं जी, इसका नाम है मदूदी, सही है? अच्छा, जिनको अच्छा, मिर्जा मदूदी साहब। इंजीनियर जी, जी सही, सही। बड़े बड़े जो है अलकाबात उनसे जो है ना नवाजते हैं, तो फलां फलां फलां। सही सही। अब ये जो किताब आपके सामने लगी है, इसका राइटर कौन है वो बता दें। आप पढ़ सकते हैं यहाँ से? नहीं यार, नजर नहीं आ रहा जहाँ पे ये इन्होंने हजरत बाजी बज़दामी के तहत इल्मी करामत नीचे नहीं पढ़ा जा रहा यार। नजर नहीं आ रहा है कि गंदे काम छड़ दियो। नजर नहीं आ रहा है, माजर के साथ मेरी ना थोड़ी सी आई। दूसरे सफे पे ना उनका उनका ना लिखा हुआ है, बायोडाटा लिखा हुआ है इनका, मदूदी साहब का, जो उल्टे हाथ पे सफा है ना, वो भी जरा पढ़ना जरा। मैंने कहा ये मुझे ना वो ये येलो साए नहीं पढ़ा जा रहा, कुछ तराजम के बारे में। कुछ तराजम के जिस भाई को नजर आ रहा है ना वो जरा पढ़ दे।